اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ توسل اور استغاثہ کا سب سے پہلے انکار امت میں ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ساری امت کا اس بات پہ بقول مولوی صاحب اتفاق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی مانگتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جا کر صحابہ کرام اور امت اپنی حاجات مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ان کے بقول ابن تیمیہ نے آ کے اس بات کا انکار کیا ہے۔ دیکھ لیں، لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد حق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا، اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ لمحے بھی آنے تھے؟ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا۔ اقبال نے کہا تھا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی، اور جن لوگوں نے امت کہ مرض کی تشخیص کی، ابھی ایک لفظ یہاں تو مولوی صاحب بات ایسے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وسیلہ سمجھا دیا اور عقیدہ سمجھا دیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء، اس کو پڑھ لیں۔ باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، حدیث نمبر 1010 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ان کو لے کر جاتے تھے، ان سے دعا منگوایا کرتے تھے اور کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ اس سے پہلے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وسیلہ آپ سے ہم دعا منگوایا کرتے تھے تو آپ ہمیں بارش دے دیتے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے تو اے اللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کے آئے ہیں، ان سے دعا منگوا رہے ہیں تو اے اللہ ہمیں بارش دے دے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ فیسقون، تو بارش ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وسیلے کا سمجھا دیا، عقیدے کا سمجھا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود تھے صحابہ کرام آپ سے دعا منگوایا کرتے تھے، نماز استسقاء، یہ نماز بھی پڑھاتے اور بارش کے لیے عمومی دعا دونوں ہی استسقاء ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے نہیں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عقیدہ اور وسیلہ سمجھا دیا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں جہاں وسیلے کا تذکرہ آتا ہے اس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال دیکھ لیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये जो वसीला है वो होता क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 50 है, और इसी सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 35 की तफसीर के अंदर लिखते हैं कि अयिल कुर्बा, यानी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो नेक अमाल करके। व कज़ा काला मुजाहिदुन, ताबई मुफस्सिर कुरान हज़रत मुजाहिद का भी यही कौल है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो यानी कि नेक अमाल करके। व अबू वाइल वल हसन व कतादा व अब्दुल्ला इब्न कसीर व सुद्दी व इब्न ज़ैद व गैर वाहिदिन, सभी ने यही कहा है। व काला कतादा, तो हज़रत कतादा ने कहा ए तकर्रबू इलैहि बिताअतिही वल अमल बिमा युर्दीही, कि अल्लाह की तकर्रब हासिल करो अल्लाह की इताअत करके और ऐसे अमाल करके जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले हों। तो यहाँ से भी सहाबा और ताबईन उन्होंने हमें समझा दिया कि अकीदा क्या होता है, वसीला क्या होता है। इब्न तैमिया ने नहीं, बल्कि इससे पहले सहाबा और ताबईन ने हमें सारे का सारा ये वसीला बता दिया था, तवस्सुल बता दिया था कि ये क्या होता है। और फिर मौलवी साहब अपने घर से ही देख लें कि अकीदा तहाविया फ़िक़्ह हनफ़ी की एक बड़ी मारूफ़ किताब है, और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ये 239 हिजरी यानी कि तीसरी हिजरी के अंदर उनकी वलादत होती है। उन्होंने अकीदा तहाविया जो लिखा और उसकी शरह भी वो एक हनफी इमाम ही हैं। इमाम तहावी भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके तरफ मंसूब हैं, और इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफ़ी जो के शरह अकीदा तहाविया लिखने वाले, अकीदा तहाविया की शरह लिखने वाले, वो 8वीं सदी में पैदा होते हैं। तो सहाबाए किराम भी यह अकीदा रखते थे, ताबईन भी यही रखते थे, हत्ता कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनका अकीदा इमाम तहावी बयान कर रहे हैं। और 8वीं सदी के अंदर आके एक बहुत बड़े हनफ़ी आलिम दीन इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफ़ी, इमाम अबुल इज़्ज़ अल हनफ़ी 731 हिजरी में उनकी विलादत होती है। तो वो भी लिखते हैं। तो ये शरह अकीदा तहाविया के सफ़ा नंबर 236 के ऊपर लिखा हुआ है कि फ़इन्न दाइया तारतन यकूल बिहक़्क़ि नबी का, कि कभी कभी ये दुआ मांगने वाला ये कहता है कि बिहक़्क़ि नबी का, ऐ अल्लाह तेरे नबी के वास्ते से हम ये मांगते हैं। तो ओ बिहक़्क़ि फ़ुलान, या फ़लाँ के वसीले से वास्ते से मांगते हैं। यक़सिमु अलल्लाहि बिअहद मखलूक़ात ही, वो अल्लाह की मखलूक़ात में से किसी की कसम खाता है। फ़हाज़ा महज़ूरुन मिन वजहैन, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब के अंदर लिखा है कि दो तरह से, दो वजूह से ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात ये कि अन्नहु अक़सम बिग़ैरिल्लाह, कि उसने अल्लाह के बगैर गैरुल्लाह की कसम उठा ली। दूसरी ये बात कि एतिक़ादुहु अन्न लिअहदिन अलल्लाहि हक़, कि अल्लाह के ऊपर किसी और का हक़ होता है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए एक बड़ी लंबी तफसील करते हुए शरह अकीदा तहाविया के अंदर लिखा है, और ये सफ़ा नंबर 237 के अंदर लिखा है। वलिहाज़ा काला अबू हनीफ़ा व साहिबाहु, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके दोनों साथी काज़ी अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, उन्होंने कहा यकरहु अन यक़ूल दाई असअलु का बिहक़्क़ि फ़ुलान, ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि अगर कोई दुआ मांगने वाला ये कहे कि मैं फ़लाँ के वसीले से मांगता हूँ, ओ बिहक़्क़ि अम्बिया का व रसूल का, या तेरे नबियों के वास्ते से, उनके इस्तिग़ासे से, या उनकी ज़ात की वजह से, व रसूल का तेरे रसूलों के वास्ते से, व बिहक़्क़ि अल बैतुल हराम, बैतुल हराम की वजह से, बैतुल हराम के वास्ते से। तो वो कहते हैं कि ये सारे का सारा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह व साहिबाहो, वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर ही लिखा है 237 सफ़ा फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ किताब जिसका हम मुताला कर रहे हैं, शरह अकीदा तहाविया, इसके अंदर ही लिखा है कि वतारतन यक़ूलु, बाज़ दफ़ा बंदा ये कहता है बेजाह फ़ुलान इंदक, के फ़लाँ का चूँकि आपके यहाँ मर्तबा बड़ा है। यक़ूलु नतवस्सलु इलैका बिअम्बियाइका व रुसुलिका व औलियाइका, ए अल्लाह तेरे अम्बिया का वसीला पकड़ते हैं, तेरे रसूलों का वसीला पकड़ते हैं, तेरे वलियों का वसीला पकड़ते हैं।
व मुरादहू, और उनकी मुराद इससे ये है कि अन्ना फुलालन इंदका ज़ू विजाहतिन व शरफिन, कि फ़लाँ बंदा उसका अल्लाह ताला तेरे यहाँ बड़ा मकाम है, मर्तबा है, तो हम उसकी वजह से, उनकी ज़ात की वजह से हम आपसे ये दुआ मांगते हैं। तो यहाँ लिखा है वहादा ऐज़न महजूर, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फ़इन्नहु लौ काना हाज़ा हुवा तवस्सुल, कि अगर यही वसीला होता तो सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मांगते थे अगर, तो फिर आपके बाद भी ऐसे मांगना चाहिए था। कहते हैं कि ये ऐसे नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम से ये बात साबित नहीं है। 237 शरह अक़ीदा तहाविया में लिखा है व इन्नमा कानू यतवस्सलूना फ़ी हयातिही बिदुआइही, नबी अलैहिस्सलाम से दुआ मंगवा के आपकी हयात में, आपके ज़िंदगी में, आपकी मौजूदगी में दुआ मंगवाया करते थे। यतलबूना मिन्हु अन यदअ लहुम, नबी अलैहिस्सलाम से जाके गुजारिश किया करते थे कि हजूर आप दुआ मांग दें। वहम युअम्मिनूना अला दुआइही, और सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पे आमीन कहा करते थे। ये वसीला था नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का। और फलम्मा माता, जिस वक्त फौत हो गए, तो फिर वही हदीस जो हमने जिसका तज़किरा किया, जिसका हमने पहले सही बुखारी के हदीस नंबर 1010 का तज़किरा किया, शरह अक़ीदा तहाविया के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। वो हदीस का हवाला दिया और फिर साथ लिखा माना हो बेदुआइही, इसका माना है कि नबी अलैहिस्सलाम से दुआ मांगा करते थे। और लैसल मुरादो अन्ना नुक़सिमु अलैका और नसअलुका बिजाहिही इंदका, तो शरह अक़ीदा तहाविया के अंदर लिखा है कि इससे मुराद ये कतन नहीं बनता कि अल्लाह हम तुझे इस बात की कसम देते हैं या नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के वसीले से मांगते हैं। इज़ लौ काना ज़ालिका मुरादन, अगर यही मुराद होती तो फिर नबी अलैहिस्सलाम का वसीला हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर था, तो फिर सहाबा किराम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों मांगा? तो यहाँ पर ये मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम से दुआ मंगाया करते थे। तो ये सहाबा किराम का भी यही कीदा था, ताबईन का भी यही कीदा था। तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी यही लिखा है। हत्ता के फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब शरह अक़ीदा तहाविया के अंदर इमाम तहावी और इमाम इब्नुल इज़ अल हनफ़ी, ये सारी उम्मत का अक़ीदा यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक की ज़िंदगी के हद तक आपसे दुआ मंगवाया करते थे। आपके बाद सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं जाते थे, बल्कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और ये सारी तफसील फ़िक़्ह हनफ़ी की अपनी किताब के अंदर भी लिखी हुई है। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पे गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।